بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کا حملہ، بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی، سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی، تمام 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ شدید فائرنگ میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر سمیت 7 جوان مادر وطن پر قربان۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں، ISPR۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے 2 افسروں اور 5 جوانوں کی بنو کینٹ میں نماز جنازہ ادا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل انجم ریاض سمیت عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ، مکمل عسکری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا میر علی میں شہید ہونے والے سپوتوں کو خراج عقیدت، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد کی دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر محمد شہباز شریف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم کا شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کے تاریخی برادرانہ تعلقات کو جامع اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ دونوں وزرائے خارجہ کا تعلقات کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ روابط کا فروغ، تجارت، سلامتی، انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون اور عوامی رابطوں میں اضافہ پاکستان کی ترجیح ہے: وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی PTI سے منسلک اکاؤنٹ سے شہداء وطن کے خلاف غلیظ مہم کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں نے زمین پر جبکہ PTI حامیوں نے سوشل میڈیا کے محاذ پر حملہ کیا۔ 9 مئی کے واقعات ہوں یا لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثہ، PTI نے ہمیشہ شہداء کا مذاق اڑایا۔ یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ملک دشمن عناصر خوش ہوں۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، فسادی ٹولہ ہے۔ شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی: وفاقی وزیر اطلاعات۔ PTI ملک دشمنی کی تمام حدیں پار کر چکی۔ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی جماعت کا 9 مئی کے واقعات کے بعد اصل چہرہ سامنے آ چکا۔ ملک کی سلامتی سے کھیلنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی: وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی نارووال میں میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب حکومت کا مستحق طبقے کے لیے رمضان نگہباں ریلیف پیکج، تقسیم کے عمل کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ، 28,32,000 گھرانوں کو راشن کی فراہمی مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ضرورت مند خاندانوں کو راشن کی ترسیل کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ صوبے میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مہم تیز، 6 کروڑ 22 لاکھ سے زائد جرمانے عائد، 1,682 مقدمات کا اندراج، 4,858 افراد گرفتار۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، صہیونی حکومت کی رفح شہر پر حملے کی منظوری، رہائشی مکانات اور مساجد پر بمباری، مزید 63 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔
मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियां, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सियासी जमातों को कलअदम करार देने से काबिज हुकूमत तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सकती, हुर्रियत क़यादत। भारत में इलेक्शन से कबल मोदी हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बीजेपी में शामिल हो जाएं या जेल जाएं। नंबर गेम पूरा करने के लिए कांग्रेस और दीगर जमातों के रहनुमाओं पर बीजेपी में शमूलियत के लिए दबाव। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 पोलैंड की गश्वेटे को यूनान की मारिया सिकारी फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोस्ट्यूक और अमेरिका की कोको गॉफ को शिकस्त। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल नसर की अल अहली के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। वाहिद गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी किक पर किया। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार मुस्तहिकीन की दहलीज पर राशन लाने वाली टीमें खुसूसी मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तहिकीन के कौमी शनाख्ती कार्ड पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके उनकी अहलियत की तस्दीक करेंगी। फिर राशन बैग पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके निगहबान रमजान राशन का तोहफा मुस्तहिकीन के हवाले कर देंगी और रिकॉर्ड के लिए वसूल कुनंदा की तस्वीर बनाएंगी। याद रखें, निगहबान रमजान राशन वसूल करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। अगर कौमी शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो फौरन करीबी नादरा ऑफिस से बनवा लें। निगहबान रमजान राशन, आपका हक, आपकी दहलीज पर, हुकूमत पंजाब। मुन्नी का आज पहला रोज़ा है। वो रहीम वो है मेहरबान, है वही सबका निगहबान। उसी का ही तो है ये फजलो करम, बनाया जो उसने निगहबान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कम आमदनी वाले 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार उनकी दहलीज पर इज्जत व वकार के साथ, ताकि हर घर में सजे खुशियों और बरकतों का दस्तरखान। निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक, आपकी दहलीज पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। तफसीली खबरों के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। इस वाक़े में 2 अफसरों समेत 7 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी से टकराई, जिससे इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर मादरे वतन पर कुर्बान हो गए।
39 साल लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ का ताल्लुक कराची और 23 साल कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलागंग से है। खुदकश हमलों के दौरान 5 जवान भी शहीद हुए। शोहदा में जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले हवलदार साबिर, लकी मरवत के रिहायशी नायक खुर्शीद, पेशावर से ताल्लुक रखने वाले सिपाही नासिर, गोहाट के रिहायशी सिपाही राजा और एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले सिपाही सज्जाद शामिल हैं। ISPR के एलामी में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए शहीद होने वाले 2 अफसरों और 5 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत अस्करी और सिविल हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद, हवालदार साबिर शहीद, नायक खुर्शीद शहीद, सिपाही नासिर शहीद, सिपाही राजा शहीद और सिपाही सज्जाद के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें मुकम्मल अस्करी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने मीर अली में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले धरती के निडर सपूतों को खराजी अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और कहा कि हमारे जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया। पूरे कौम को अपने जवानों पर फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम अपने शोहदा के कुर्बानियों के मक़रूज़ हैं। पूरे कौम इन सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर ममलकत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मातृ वतन के दिफा का फ़राइज़ अंजाम देने वाले हमारे हीरो हैं। वफाकी काबीना के अरकान और सियासी रहनुमाओं ने भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के करीबी बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम उनके पुरतपाक इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुस्लिम उम्मा के अमन और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर सगाली के जज्बात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत का इआदा किया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मलिक अहमद खान ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने लाहौर में मुलाकात की और मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सेहत के शोबे की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कौमी असम्बली के अरकान मोहम्मद उस्मान ओवैसी और अब्दुल गफ्फार भट्टू ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने मजमूई सूरत हाल और अपने अपने हलकों से मुतालिक उमूर के बारे में वज़ीर आज़म से बातचीत की। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने भी लाहौर में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान के हमराह जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यादगार शहादत पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। उन्होंने दिफा वतन के लिए जाम शहादत नोश करने वाले धरती के निडर सपूतों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत के साथ कौमी सलामती और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी खतरात से निमटने और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानी को सराहा।
मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ऑपरेशनल तैयारियां यकीनी बनाने के लिए फ़ौज पाकिस्तान को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ के दौरे पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ मजबूत दिफाई, सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और पाक फ़ौज की पेशावराना महारत और लगन का एतराफ़ किया। बहरीन के कमांडर ने दिफा और सलामती के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार और उनके तुर्क हम मनसब हक़ान फ़िदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में वसअत देने के अज़्म का इआदा किया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने सेनेटर इसहाक़ डार को वज़ारत ख़ारिजा की ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद भी दी। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार को टेलीफोन किया और ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि रवाबित का फ़रोग़, तिजारत, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन और अवामी राबतों में इजाफ़ा पाकिस्तान की अहम तरजीह है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर ने अमरीका के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पार्लिमानी रवाबित की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने दो तरफ़ा ताउन में इजाफ़ा और हम आहंगी के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए अपने मुल्क की जानिब से ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तार ने अपने बयान में शहदाए वतन के खिलाफ PTI से मुंसलिक अकाउंट से मज़मूम मुहिम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों ने ज़मीन पर जबकि PTI हामियों ने सोशल मीडिया के महाज पर हमला किया। 9 मई को रियासती इदारों और शहदा की यादगारों पर हमले हों या 9 अगस्त 2022 को सानहा लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतें, PTI ने शहदा का हमेशा मजाक उड़ाया। ये लोग हर वो काम करते हैं जिससे मुल्क दुश्मन अनासिर खुश हों। वज़ीर इत्तलात ने मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम अपने शहदा को सलाम पेश करती है। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। शहदा की तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अता तारड़ ने कहा कि हम शहदा के वक़ार और नामूस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इन लोगों ने IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके मुल्क के माशी महाज पर हमला किया। आज कौम के बेटों की शहादतों पर काबिल मज़म्मत रवैया अपनाकर दहशतगर्दी के महाज पर दहशतगर्दों का साथ दिया। ये सियासी जमात नहीं, फसादियों का टोला है। शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार कर चुकी है। कौम पाकिस्तान की सलामती से खेलने वालों को माफ नहीं करेगी। तफसील जानते हैं अनीसा वान से। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मनसूबा बंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक जमात बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशों में मुलविस है। कुछ लोग मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ खेल खेल रहे हैं। वाशिंगटन में IMF के दफ्तर के सामने PTI ने जो मुजाहरा किया है वो मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें फलांग चुकी है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाकर पाकिस्तान के दुश्मनों के कलेजे को ठंड डाली है। पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा किया जिससे मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ। बैरूनी फंडिंग से चलने वाली जमात 4 सालों में
पाकिस्तान की तारीख का 80% कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ाया। उनकी उस 4 साला कारकर्दगी की सजा एक आम आदमी महंगी बिजली, महंगी गैस और महंगाई और नौजवान बेरोजगारी की सूरत में भुगत रहे हैं। मनसूबा बंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हमने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और अब भी देंगे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत की बहाली के लिए जामे पॉलिसियाँ नाफिज करके उन पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं है। सनती और माशी तरक्की के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत सरकारी इदारों की निजगारी में संजीदा है और इस सिलसिले में PIA की निजगारी को भी जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल हो गया है। पंजाब में कुल 12 नशिस्तों के लिए 28 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद चीमा, परवेज़ रशीद, हामिद खान, एजाज मिनहास, वलीद इकबाल, वसीम शहजाद, फ़ायज़ा अहमद, अनुशा रहमान, सनम जावेद, यास्मीन राशिद, मुस्तफ़ा रमदे, मुसद्दिक मलिक, खलील ताहिर सिंधु, तारिक जावेद और आसिफ आशिक ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब में सेनेट की 7 जनरल खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट और उलमा की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध की 12 नशिस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास 35 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। नजीब हारून, रऊफ सिद्दीकी शब्बीर, कायम खानी, काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, सरमद अली, कुरतुलैन मरी, रुबेना कायम खानी और पंचमुलमल भेल समेत दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। बलूचिस्तान की कुल 11 नशिस्तों के लिए 36 कागजात जमा हुए। जनरल नशिस्तों पर अनवारुल हक काकड़, इमल वली खान, जान मोहम्मद बरीदी, सईदुल हसन मंदोखेल, कोहदा बाबर, मीर चंगेज जमाली, सरदार उमर गोरगेज, आगा शाह ज़ेब दुर्रानी, अहमद खान औरंगज़ेब के एहतरान, बिलाल मंदोखेल, तारिक मुसव्वरी बख्ती, जाहिद अख्तर बलोच, नसीबुल्लाह बाज़ाई, यार मोहम्मद लहड़ी, मौलाना अब्दुल वासे, कारी रहमतुल्लाह, अमानुल्लाह कंदरानी, डॉक्टर हुसैन इस्लाम, डॉक्टर अतउर रहमान और मौलाना अब्दुल हक हाशमी की तरफ से भी कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 सीटों पर 42 उम्मीदवारों की तरफ से कागजात जमा कराने का अमल मुकम्मल हुआ। 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और खातीन की मुख्तस 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। आज़म सवाती, काजी मोहम्मद अनवर, वक़ार अहमद काजी, डॉक्टर हम्माद महमूद चीमा, खालिद मसूद, दिलावर खान, सैयद इरशाद हुसैन, इरफान सलीम, मोहम्मद तलहा महमूद, दिलावर खान, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, अजहर काजी मिशवानी, मुराद सईद, खुरम ज़िशान, महविश अली खान, आशा बानो, रुबीना नाज और सैयदा ताहिरा बुखारी के कागजात जमा हुए हैं। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मोहम्मद इसहाक डार, राना महमूदुल हसन, फरजंद शाह और अंसर कियानी के कागजात जमा हुए। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल शाये की जाएगी। जांच पड़ताल का अमल 19 मार्च को होगा, जबकि अपीलें 21 मार्च तक जमा होंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे और उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 26 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के माशी रूट मैप का खैर मकदम करते हुए उसे तारीखी और इनकलाबी इक़दाम करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माशी बहरानी कैफियत से निकालने के लिए वज़ीर आज़म ने बेहतरीन रोड मैप पेश किया है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई में कमी और गुर्बत में तख़फ़ीफ़ माशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। ज़रई शोबे में कम लागत ज़रई मुदाखिल से ज़्यादा पैदावार का हुसूल हमारा हदफ है। उन्होंने कहा कि मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ प्रोग्राम के लिए 64 लाख से ज़ायद मुस्तहिक घरानों को मुफ्त राशन की फराहमी का अमल 10 रमज़ानुल मुबारक तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास भट्टी।
पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने लाहौर में सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जामिया मनसूबा बंदी और मौसर इक़दामात के बायस रमजान निगहबान पैकेज के समरात महरूम तबकों तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक राशन के 50% से जायद बैग मुस्तकीन की दहलीज तक पहुँचाए जा चुके हैं। ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ, ख़ासतौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसके लिए ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदान जो हैं उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर पूरा एक हैम्पर जिसके अंदर आटा है, चीनी है, बेसन है, चावल हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनके घरों पर बग़ैर किसी इंतज़ार के, बग़ैर किसी कतार के जो है वो प्रोवाइड की जाए। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि सूबे में पहली बार ऐसे मॉडल बाजार कायम किए गए हैं जहां तमाम अशिया खुर्दोनोश मार्केट से 50% कम नरखों पर मुहैया हैं। अंदाजा करें कि हमारे माशरा किस तरफ चल रहा है कि 3 लाख इंस्पेक्शन हो गई है, उसमें 28-30 हज़ार रमज़ान के महीने में, जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मेरा आपका ईमान है, मगर वो कैसे शयातीन है जो अभी तक जकड़े नहीं गए, मगर गवर्नमेंट की एफर्ट वहाँ पे आपको मौजूद नजर आएगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पे इनको जकड़ा और 2200-2300 के करीब इन 4 दिनों में लोग जो सीरियस वायलेशन पे थे उनको अरेस्ट किया। एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर ने कहा कि आम मार्केटों में अशिया खुर्दोनोश की किल्लत रोकने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और कीमतों को काबू में रखने के लिए सूबे भर में 1400 से जायद प्राइस मजिस्ट्रेट भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। रास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रियायती नरखों पर ज़रूरी अशिया की फराहमी का अमल जारी है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत माह मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद को यूटिलिटी स्टोर्स पर 12.5 अरब रुपए से जायद का रिलीफ दिया जा रहा है। पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कम वसीला अफराद के लिए टारगेट सब्सिडी के जरिए खसूसी रायत को यकीनी बनाया गया है। BISP वाले जो उनसे आते हैं हमारे पास, उनको 109 रुपये चीनी मिलती है, जबकि मार्केट में 160-165 रुपये है। तो इसी तरह घी है, घी जो है 450 से कम कोई नहीं है, तो घी जो है वो 335 रुपये पर केजी मिल गए। मतलब ये बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। विफाकी हुकूमत के खुसूसी पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी समेत 19 बुनियादी अशिया खुर्दनोश के साथ साथ दूध, मसाला जात और मशरूबात भी सस्ते दामों फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो सस्ता राशन दे रहे हैं। वज़ीर आज़म रिलीफ प्रोग्राम के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन को भी 1000 से ज्यादा अशिया पर 15% तक खुसूसी रायत दी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि जो इन्होंने पैकेज चलाया है, रिलीफ पैकेज, और हमारा रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर रहा है। गरीबों के लिए खासतौर पर रमज़ान मुबारक में ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और गवर्नमेंट के हमें जो भी अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी के अमल को शफाफ रखने के लिए मॉनिटरिंग का खुसूसी निज़ाम भी वज़ा किया गया है, जिसके तहत खुसूसी टीमों के जरिए मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से लगाया जाने वाला यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में भी अशियाए ज़रूरिया पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। तफसील फाहद अजीज से। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत माह में अवाम को सस्ते नरखों रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज का बाकायदा आगाज कर दिया है। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स में बुनियादी ज़रूरी अशिया पर 12 अरब से ज़ायद की रियायत दी जा रही है। लोगों की सहूलत के लिए मुल्क भर में 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल सहूलत मराकज़ कायम किए गए हैं। लोग रमज़ान में सस्ती और मियारी अशिया की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं ताकि इस पैकेज से मुस्तफिद हो सकें। इस दफ़ा सिर्फ बातों की हद तक नहीं रिलीफ दिया गया, अमली तौर पर रिलीफ दिया गया। एक ही छत के नीचे तमाम सब्सिडी की तमाम चीज़ें मुयसर हैं, हम आ रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम प्राइसेस के ऊपर रिलीफ हमें मिलेगा और हम सारी ग्रॉसरी या जो भी कुकिंग की चीज़ें होंगी मयारी लेके जा सकेंगे। अभी जो क्वालिटी जा रही है ये बड़ी ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरी दालें हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 10 किलो बैग 648 रुपये, चीनी 109 रुपये फ़ी किलो और घी 335 रुपये फ़ी किलो में फराहम किया जा रहा है। दालों और चावल पर 25 रुपये, बेसन 50 रुपये और चाय पर 100 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज़ वाफर मिकदार में मिल रही है। आटा देखें हर
रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर पाकिस्तान में हर पॉइंट पे आटा मिल रहा है आपको। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे इक़दाम बहुत अच्छे हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब के। यहाँ पर स्टोर मुनाकिद किया हुआ है, उसमें हर एक चीज़ जो है ना कीमत से बहुत सस्ती रेट से मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत पूरे रमज़ानुल मुबारक में सस्ती अशिया खुर्दोनोश दस्तयाब होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस रमज़ान रिलीफ पैकेज से लाखों मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। फ़हद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्लास्टिक के नोटों के इजरा से मुतालिक खबरों की तरदीद की है। पॉलीमर बैंक नोटों के इजरा के बारे में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन खबरों को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान ने कहा कि बैंक नोटों के कागज़ से पॉलीमर में तब्दील किए जाने के बारे में फ़िलहाल कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां पूरे जोशो जज्बे से जारी हैं। परेड में हिस्सा लेने वाले प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स ने हुब्बुल वतनी के जज्बात का इजहार किया है। जब से पाकिस्तान बने हमने तमाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको हमने एस्कॉर्ट किए ऑन प्रेसिडेंट डे परेड्स और उसके अलावा भी जितनी भी सेरेमनीज होती हैं। वी आर द प्रेजेंट ट्रूप्स एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। ये शो तो एक दिन का है बट इसकी तैयारी के लिए हमें अबाउट अ मंथ जो है वो लग जाता है। हमारे 57 हॉर्सेस हैं जो इस दफ़ा परेड में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें जो हमारी मैन पावर है 57 ही इंडिविजुअल्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। इस जानवर को हम बच्चों की तरह ख्याल करते हैं। जिस टाइम हम इसको तैयार करते हैं बालों पे ऑयल वगैरह लगाते हैं, कंघी करते हैं, ये बहुत जो है ना अच्छा महसूस करता है। प्राउड मोमेंट होता है तमाम लोगों के लिए, पूरी यूनिट के लिए जब भी हम एक सक्सेसफुल 23 मार्च की जो परेड है उसको कंडक्ट करते हैं। फख्र महसूस करते हैं कि हम सदर पाकिस्तान को बग्गी के ऊपर बिठा के लेके जा रहे हैं। इस परेड में हिस्सा लेकर अपनी और इस रेजिमेंट की इज्जत को मजीद बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा है कि हम बहैसियत कौम एक है, पाकिस्तान हम सब के दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत लाजवाल है, हमारी अखुवत और हम आहंगी बेमिसाल है। इस दरख्त की कई शाखें हैं मगर बुनियाद एक है। हमारी जुबानें मुख्तलिफ है मगर बयान एक है। यहाँ हर तरह के रंग हैं मगर पाकिस्तान एक है। खुदा करे ये वतन हमेशा मुस्कुराता रहे, परचम पे सदा चांद सितारा यूं ही जगमगाता रहे। हम सब के दिल की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। आलमी मंजरनामे पर बात करेंगे। गजा की इसराइली फोर्सेस गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। जंगज़दा इलाके में नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक बमबारी से मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद और 112 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की कार्रवाइयों में अब तक 31,553 अफराद शहीद और 73,546 ज़ख्मी हो चुके हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी की है। खौफनाक हमले में 36 अफराद शहीद हो गए जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फोर्सेज ने तलकरम, अल खलील, नाबलूस और जन्नीन में मुख्तलिफ कार्रवाई के दौरान 20 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी कैदी ग्रुपों के मुताबिक इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर से अब तक 7,605 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म ने रिफा शहर पर ज़मीनी हमले की मंजूरी दी है, जिसके बाद फौज किसी भी वक्त रिफा पर हमलों का आगाज़ कर सकती है। सेहूनी इक़दाम के बाद रिफा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को खतरात लाहक हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद रिफा में फंसे 15 लाख फ़लस्तीनियों के इनक़ला के लिए ऑपरेशनल तैयारी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए खबरदार किया है कि ज़मीनी कार्रवाई के नताइज तबाहकुन बरामद होंगे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मशक़ वस्ता में पायदार अमन और सलामती का वाहिद रास्ता दो रियासती हल में ही मसमर है। जर्मनी और हॉलैंड ने भी इसराइल को रफ़ा हमले के खिलाफ खबरदार किया है। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा ने खबरदार किया है कि गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत इंतहा को छू रही है। 2 साल से कम उम्र के 1/3 बच्चे शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ के मुताबिक जनवरी से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत में 15.6% इजाफा हुआ है।
रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ओडेसा पर मिसाइल हमले के नतीजे में 20 अफराद हलाक और 73 जख्मी हो गए। दोनों मुल्कों ने हमलों का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया है। यूक्रेन के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड्री कोस्टन ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूस की जानिब से 2 मिसाइल फायर किए गए हैं। हलाक होने वालों में रेस्क्यू एहलकार और तिब्बी अमले के अरकान भी शामिल हैं। रूसी फ़ज़ाई बमबारी में रहायशी इमारतों, एम्बुलेंसेस और एक गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमलों को यूक्रेन की जानिब से सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश करार दिया। अपने मुल्क की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमले सदारती इंतखाबात के खिलाफ घिनौनी कोशिश हैं। दुश्मन के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बात करेंगे मकबूजा जम्मू व कश्मीर की। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर में मज़ीद 2 तंजीमों पर 5 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आज़ादी पसंद तंजीमों जम्मू व कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू व कश्मीर पीपल्स लीग पर पाबंदी का ऐलान भारतीय वज़ीर दाखिला उम्मीद शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर किया। उन्होंने जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर आयद पाबंदी में मज़ीद 5 बरस की तौसी का भी ऐलान किया। गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद मोहम्मद यासीन मलिक की सरबराही में कायम लिबरेशन फ्रंट पर पहली मरतबा मार्च 2019 में पाबंदी आयद की गई थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि बीजेपी की फ़िरक़ा परस्त भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी लगाकर कश्मीरियों को मुसलसल महकूम रखना चाहती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत इस तरह के उच्च हथकंडों से कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत के लिए आवाज़ उठाने से बाज नहीं रख सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के सीनियर रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसके मुतल्लिक़ा करारदादों के तहत हक़ खुदरातियत की वकालत करने वाली सियासी जमातों को कलदम करार देने से कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखने से नहीं रोका जा सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मज़ालिम का एक तवील अरसे से पामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं और उनके हौसले बुलंद और जज्बा आज़ादी मजबूत और तवाना है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी एक रोज़ भारतीय गुलामी से ज़रूर छुटकारा पालेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी की सरबराही में कश्मीरी वफ़द ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुक़र्रीन ने मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेज की तरफ से जारी खून रेज़ी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने आलमी इदारे की इंसानी हकूक़ कौंसिल और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की मज़मूम भारतीय कोशिशों का नोटिस लें। भारत में मोदी सरकार इलेक्शन से कबल नंबर गेम पूरी करने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं को जबरदस्ती पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाल रही है। भारतीय ज़राए इब्लाग का कहना है कि बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस के एक रुकन असम्बली अरविंद लडानी को जबरदस्ती पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। कांग्रेस रहनुमाओं को धमकी दी जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं या जेल जाएं। जनवरी में डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की जानिब से कांग्रेस के साबिक लीडर की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा मोदी सरकार के मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के नफाज के बाद बैनुल-अक़वामी बरादरी ने भी इसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने शहरियत तरमीमी कानून को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने मुतनाज़ शहरियत कानून पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि मजहबी आज़ादी का एहतराम और तमाम अक़लियतों के लिए कानून के तहत मुसावी सलूक बुनियादी जमहूरी उसूल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारत में शहरियत कानून के नफाज पर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे एक इम्तियाजी कानून करार दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए मोबाइल सर्विस में बेहतरी के लिए पाक फ़ौज ने कंपनियों की मुआवनत की। एक साल के दौरान तकरीबन 19 मकामात पर मोबाइल फ़ोन के टावर नस्ब किए गए। सहूलत की फराहमी का फ़ायदा तमाम मकामी और कारोबारी अफराद को हुआ है। मोबाइल फ़ोन सर्विस की दस्तयाबी इलाके के अवाम की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर अहद खान चीमा ने लाहौर में मुलाकात की और कौमी तरक्की से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत महासिल में इजाफे के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार ला रही है। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि बलूचिस्तान में 2021 के बाद एक मरतबा फिर पोलियो के 2 केसेस सामने आए हैं।
ये केस चमन और डेरा बुगटी से रिपोर्ट हुए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। बलूचिस्तान से 3 साल के बाद पोलियो के 2 केसेस डेराबुगटी और चमन से रिपोर्ट हो गए। एक बच्चे की उम्र 2.5 साल और दूसरे की 4 साल है। दोनों ही केसेस में OPV यानी मुंह के जरिए वैक्सीन दिए जाने की वैक्सीनेशन हिस्ट्री तो मौजूद है और दोनों ही केसेस YB3A यानी माहौलियाती नमूनों से मुंसलिक भी हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बलूचिस्तान से अब तक 56 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2020 में सबसे ज्यादा 26 केसेस सामने आए, जबकि 2022 और 2023 में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बलूचिस्तान उन इलाकों में शामिल है जहां वाइल्ड पोलियो वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। ये एक ऐसा वायरस है जिससे बच्चे ही नहीं बड़े भी मुतासिर हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन न ली हो। 2 केसेस सामने आ जाने का मतलब पोलियो का खतरा अब भी बलूचिस्तान में मौजूद है। इमरजेंसी सेंटर की तरफ से पहले ही कोयटा, पशीन, चमन, हब, सिबी, नसीराबाद, मस्तूम, केच और डेरा बुगटी के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी के हवाले से मुतनब्बे किया जा चुका है और 26 फरवरी से 7 रोजा मुहिम में 26,55,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन देने के लिए मुहिम भी चलाई गई। समझना होगा कि पोलियो वायरस बुनियादी तौर पर इंसानी खुराक की नाली से जिस्म में दाखिल होता है और इंसानी फुजले से फैलता है। ऐसे इलाके जहां सफाई का बेहतर इंतजाम न हो वहां मुतासिर लोग वायरस को माहौल में खारिज कर देते हैं। पोलियो एक ऐसा वायरस है जो किसी भी उम्र के इंसान को मुतासिर और 5 साल से कम उम्र बच्चों को मफलूज भी कर सकता है। कुछ बच्चों में 5 या 6 बार पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल करके वायरस के खिलाफ मुदाफियत पैदा हो जाती है, लेकिन कमजोर बच्चों में मुदाफियत 10 बार से भी ज्यादा मरतबा वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद पैदा होती है। पोलियो वायरस से बचना है तो जरूरी है वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान हर मरतबा पोलियो वैक्सीन जरूर बच्चे को पिलवाई जाए। इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन IPV पोलियो से बचाव में मौसर है। ये खून में वायरस के खिलाफ मुदाफियत पैदा करती है। ताहम बलूचिस्तान जैसे एरियाज में IPV के बजाय मुंह के जरिए वैक्सीन का देना निस्बतन आसान है। ख्याल रहे वैक्सीनेशन के कई हफ्तों बाद पोलियो वायरस जिस्म में दोबारा बढ़ना भी शुरू हो सकता है और स्टूल में इखराज के बाद उनको मुतासिर कर सकता है जिन्होंने वैक्सीन न ली हो। बलूचिस्तान भर के लोगों से अपील है कि पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत की कोशिशों और वैक्सीनेशन की अहमियत को नजरअंदाज न करें। सूबे भर में बार बार इंसदादे पोलियो मुहिम इसीलिए चलाई जाती है क्योंकि चैलेंज सेहतमंद मुस्तकबिल का है। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी ने NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद में ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजद की जमा करा दिए हैं। हल्के में 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद खाली हुई है। नवाबशाह में कारकुनों से खिताब करते हुए आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। उम्मीद है अवाम मुझे मुंतखब करके खिदमत का मौका देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन की रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन आबोताब के साथ जारी है। तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में जानिए। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। हम्द बारी ताला और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। ख़वातीन नात ख़्वानों यशफ़ैन, हिबा और राबिया ने बहुज़ूर सदर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह अक़ीदत पेश किए। छोटी सी नेकी सेगमेंट में मुस्तहिक़ अब्दुल कादिर की मदद की अपील की गई। नातिया मुकाबला रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का हिस्सा था। इमरान शेख और इरशाद अंजुम ने जज के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। आज के जायके में शेफ सामिया ने मज़ेदार डिश बनाई। घरेलू टोटके में डॉक्टर बिल्किस ने गिरते बालों को रोकने से मुताल्लिक़ मुफीद टोटके बताए। तासीर कुरान मजीद के सेगमेंट में उलमाए कराम से रमज़ान मुबारक और उसवा हसना पर गुफ्तगू हुई। उलमाए कराम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। कामिलतन ईमान उस वक्त होता है जब कुरान करीम के बमुजिब उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा कि तुम दीन इस्लाम के दायरे में मुकम्मल तौर पर आ जाओ। और मुकम्मल उस वक्त होगा कि जब आप अपने किरदार में, गुफ्तार में, खलवत में, जलवत में उस हुक्म को नहीं मानेंगे जो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ट्रांसमिशन में मारूफ अदाकार यासिर हुसैन ने भी शिरकत की और अपने करियर के बारे में बताया। बच्चों के सेगमेंट में ahsan खान और राबिया अनम ने बच्चों से मज़े मज़े की बातें की, उनमें घुल मिल गए और बच्चों को नसीहत आमेज कहानी सुनाई। अज़ान मग़रिब के साथ ही रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात इख्तिताम पजीर हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में रावलपिंडी में भी इफ्तार दस्तरखान का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं इमरान मनसब खान इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के इलाके गुलशन दादन खान में मरी रोड पर एक फलाही तंजीम की जानिब से इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुखय्यर हजरात दिल खोल कर हिस्सा लेते हैं। ये 2017 से हमने इसको आगाज किया था। सदका जारिया
शुरू किया और ये पूरा साल जारी रहता है। हमारे भी जो दोस्त अहबाब हैं वो इसी तरह वो हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, जिससे ये हमारा दस्तरखान चल रहा है। अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने गुंजाइश के मुताबिक जो भी लोग इसमें अपनी मदद करते हैं, ये गल्ला हमारा बना हुआ है, इसमें लोग अपने पैसे डाल देते हैं। फैजाबाद लारी अड्डा करीब होने की वजह से यहाँ ज्यादातर मुसाफिर, राहगीर और अमूमन सफेद पोश हजरात रोजा इफ्तार करते हैं। मजदूर शख्सों को इतने के तावन किया हुआ है, अल्लाह ताला इनको और दे, अल्लाह ताला आपको भी तावन दे, और माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाजारों और शाहराहों पर समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात की जानिब से बड़ी तादाद में इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जिससे गरीब और मुस्तहिक अफराद रोजा इफ्तार करते हैं। अब्बासिया वेलफेयर ट्रस्ट के ताबन से लगने वाला ये दस्तरखान न सिर्फ रमजानुल मुबारक बल्कि पूरा साल जारी रहता है। इमरान मनसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। रमज़ानुल मुबारक में समाजी फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात की तरफ से इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इफ्तार दस्तरखान पर रिपोर्ट कर रही हैं समीउल्ला। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आवाम को यूटिलिटी स्टोर के जरिए रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। सक्खर से इमरान मलिक की ये रिपोर्ट। सक्खर और इसके गिरदोनवा में यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया का वाफिर स्टॉक फराहम किया जा रहा है, जहां से अवाम खरीदारी में मसरूफ हैं। यूटिलिटी स्टोर पे फायदा है, गरीब को अच्छा सौदा मिलता है, 640 रुपए में बोरी मिलती है, अच्छी है, फिर भी हमारे को फायदा पड़ता है। अवाम और हकीकी ग्राहकों को सहूलियत की फराहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑनलाइन निज़ाम के तहत शफाफ अंदाज में खुसूसी रियायत भी फराहम की जा रही है। हमने जो इस रमजान के अंदर सब्सिडी आई है वो जनरेटरों में सबके लिए ऑलरेडी सब्सिडी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मार्केट की निस्बत कम कीमत पर अशिया जरूरत की फराहमी अवामी रिलीफ के लिए बहुत अहसन इकदाम है। हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सब्सिडी से अवाम को खासा रिलीफ मिल रहा है। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। मजीद खबरों की जाने बढ़ेंगे। यहाँ आपको आगाह करेंगे कि हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में सस्ते रमज़ान बाजार कायम किए हैं, जहाँ शहरियों को बाजार से 25% सस्ती अशिया दस्तयाब हैं। तफसील बता रहे हैं मलिक मोहम्मद अली। आवाम को सस्ती अशिया मुहैया करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया चिन्योट ने आवाम को आटा, घी, चीनी, फल, सब्जियां, मशरूबात, गोश्त, खजूरें और दीगर अशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों फराहम करने के लिए रमजान बाजार लगाया है, जहाँ पर 13 मुख्तलिफ अशिया 25% मार्केट रेट से कम पर फरोख्त की जा रही है और आवाम इस बाजार का रुख कर रहे हैं और अपने इस्तेमाल के लिए अशिया खरीद रहे हैं। चीज़ें तो अच्छी मिल रही हैं, बारात भी मिल रही हैं। हम शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें रमज़ान बाज़ार में सस्ती चीज़ें दी हैं। खरीदारी में रेट का काफ़ी फ़र्क है। मैंने यहाँ पर जो चीज़ भी खरीदी है मुझे बाहर की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ती मिली है, यानी कि मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। मरियम निवाज ने रमज़ान बाजार सस्ता लवाया है, हर चीज़ की बड़ी सहूलत है रमज़ान बाजार है। आवाम को बासानी खरीदारी के लिए मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग बैठने के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आवाम की सहूलत के लिए पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है। तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप और शिकायत के अजाले के लिए भी काउंटर कैंप किया गया है। रमज़ान बाजार में आवाम को अशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों मिल रही हैं, जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मुहैया किए गए हैं। आवाम इन सहूलियात से मुतमईन है। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चिन्योट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाज़रीन आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई और वस्ती इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। नाज़रीन रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे लेह की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। काला में -6, अस्तोर -2, जबकि स्कर्दू और गोपस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 13, कराची 18, पेशावर 9, जबकि कोयटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।